डॉक्टर नीना, अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों को स्मोक नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, लेकिन वो महिलाएं क्या करें जो दिल्ली में रहती हैं, मेट्रो सिटीज में रहती हैं, पॉल्यूशन का सामना करती हैं, तो क्या वो भी ऐसी ही सिचुएशन में है जैसा वो स्मोक कर रही हैं, और अवॉइड करें तो कैसे करें? दैट इज पैसिव स्मोकिंग ऑफ कोर्स। सारी पोल्यूशन लेवल्स ही इतने ज्यादा हैं, जैसे यू आर ऑलमोस्ट ड्रिंकिंग सिगरेट्स on your own, even if you're not drinking cigarettes, just because you're inhaling that pollutant air. So definitely that is going in the lungs of all these females as well who are getting pregnant. Passive smoking तो पक्का हो ही रही है। Prevent करने के लिए now I can only say few instructions which we can give to pregnant patients now. Of course, barring going and delivering on the moon, which can be a possibility as now the people have started moving there. So I think the registrations are going to be there up in the moon. But anyhow, having said that, in Delhi, the pregnant patients as of today, first of all, house arrest. It is declared when she is pregnant, now there's a lot of pollution outside, don't go outside because you need to be at home. At home, the pollution, the cigarette smoking of the husband is out, so the husband is out of the house, where he has to go and smoke outside, because that is again passive smoking. Cooking of the food, which is happening in the house, we need to have proper exhaust fans, because we want to, at least the inside pollution also has to be taken care of. There is household pollution as well. Incense sticks are out, because we would always tell them not to have incense sticks, वो पूजा के time पे लगाते हैं, वो भी खत्म है. Aerosols लगाते हैं for giving, good air and smell in the house, good smell, that is out, because these are all like pollutants in the house, unfortunately. We would like to tell these pregnant patients to have indoor plants which reduce this pollution, barring a few names like peace lily is there, then areca palm is there, etc., etc. So those are the kind of facilities. We would like to tell them to have more antioxidants in their diet, because that is what is the main thing which helps them to recover out of this pollution. That may be berries, that may be nuts, that may be leafy vegetables. खूब सारा पानी पिएं अच्छे से, because they have to hydrate themselves well, because ये toxins को wash out करेगा. It is like a dilution to pollution, right? And if they have to go out, now they have to come out some time of the day. So इतने peak hours में जहाँ pollution बड़ा हो बहुत, तो मत जाएं बाहर. अगर बाहर जाना है तो उस टाइम पे जाएं जब pollution कम हो, number 1. Number 2, they should wear N95 mask or a light, जो कि ये pollutant से उनके lungs तक पहुंचने में at least there should be some block to that. यानी कुल मिला के जो न्यूट्रिशन की बातें थी, अब न्यूट्रिशन से आगे केज्ड एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ताकि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्लीन एयर दे पाएं। इस वक्त तो कोई और ऑप्शन नहीं लग रही, बिकॉज टू मेक दीज सजेशंस, बिकॉज अभी तो कंट्रोल नहीं है, पोल्यूशन लेवल्स आर हायर, वी रीड इट एवरी डे इन एंड आउट, वी आर सीइंग द इफेक्ट्स इन आवर क्लिनिक्स. सो दिस इज द ओनली एडवाइस जो हम इस वक्त दे सकते हैं उनके हित में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब निकलें तो ऑब्वियसली अपने डॉक्टर्स के पास भी आए. कोई सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, कोई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, रेगुलर चेकअप्स में द ऑब्स्टेट्रिशियन विल ओनली हेल्प बाय गेटिंग अल्ट्रासाउंड्स, लुकिंग इनटू द एग्जामिनेशंस, व्हाट विल बी द राइट टाइम टू डिलीवर द बेबी, अगर कोई बेबी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है तो. बिकॉज दैट टाइम ऑल्सो इज डिसाइडेड. अभी जो वो 9 महीने वाला पीरियड है वो 9 महीने का नहीं रहा. बहुत बारी इमरजेंसीज में वी हैव टू डिलीवर दीज बेबीज बिकॉज दे आर नॉट डूइंग वेल इनसाइड. डॉक्टर दुर्गेश, माना जाता है कि पॉल्यूशन का असर आईक्यू पे भी होता है, तो क्या बच्चे की ग्रोथ के अलावा ऑर्गन डेवलपमेंट, आईक्यू डेवलपमेंट, उस पे भी असर पड़ता है, या सिर्फ ये एलर्जी या फिर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वहां तक सीमित है? सर, this actually starts right from the intrauterine time. That means कि whenever the baby is inside the mother's womb, all those factors that affect the growth of the baby, for example जैसे growth retardation हो गया, या मदर का कोई बीपी या शुगर का इशू है जिसका असर बच्चे पर भी पड़ रहा है. अगर इन किसी भी कारणों से डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमें प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ती है, या लो बर्थ वेट बच्चा निकलता है, इस सब का आउटकम डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ पर भी पड़ेगा बाद में. और सिर्फ बॉडी ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उसको न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज भी आने के चांसेस होते हैं, जिसमें उसकी हो सकता है ऑटिज्म भी बढ़ जाए. ऐसे वाले केसेस में ऑटिज्म के साथ साथ इम्यूनिटी कम हो सकती है, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं. इस तरह के बच्चे अपने आप में भी कन्फाइन रह सकते हैं. नंबर ऑफ एलर्जीज हो सकती हैं, बार बार डॉक्टर्स के विजिट, परेशान रहेंगे, तबियत खराब रहेगी, कहीं ना कहीं उनकी स्कूल
आई थिंक एक सोशल फ्रेमवर्क पर भी कहीं ना कहीं इनका असर पड़ता है। सोशल फ्रेमवर्क की बात आई तो मुझे स्कूल वर्क फ्रॉम होम की जगह स्कूल फ्रॉम होम याद आ गया। डॉक्टर पंकज, आजकल एक मैजिक पिल ढूंढने की कोशिश की गई है एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा। पॉल्यूशन है तो बच्चों को घर पे ऑनलाइन क्लासेस दे दो। इसका क्या इंपैक्ट आपने देखा है और क्या ये पॉल्यूशन का एक सेंसिबल सॉल्यूशन है या मजबूरी है? डॉक्टर रमेश अग्रवाल, नॉट हाँ, पंकज। माफ। कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है कि पोल्यूशन का जो समाधान है वो पोल्यूशन को हटाना है। वो जो है वो किसी दूसरी चीज से नहीं हो सकता। आप उसको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू नहीं कर सकते। हम माँ को या एल्डरली को घर में बंद करके नहीं कर सकते। यदि हम करेंगे तो वो भी अपनी एक प्रॉब्लम इश्यूज हैं। और हम सब ने कोविड का जमाना जिया है और घर में बंद रहे बच्चे, या बहुत सारे बच्चों के माएँ एंड पिताएं होंगे, उन्होंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे होंगे कि उसके भी कितने ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। ऑफ कोर्स जब आपका सो देयरफॉर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो पोल्यूशन को हटाने से ही ठीक होगी। कोई दूसरा उसका सोल्यूशन नहीं है। ये हमें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी दिन पोल्यूशन बहुत ज्यादा है आप बंद कर सकते हैं, ना जाएं, एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। लेकिन आप कब तक करेंगे? जब हमारी पोल्यूशन की प्रॉब्लम पेरिनियल है। हम इस टाइम पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि इस वक्त थोड़ी ज्यादा हो गई है, बट बाकी महीने हमारे सेफ नहीं है। हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम यदि आप देखेंगे कि WHO का रिकमेंडेशन यह है कि PM5 का 2.5 का लेवल जो है एनुअल एवरेज होना चाहिए 2.5 के करीब, 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर और समथिंग पर क्यूबिक मीटर। वो आपका लेवल होना चाहिए। हमारा एवरेज कितना है कंट्री का? आज 350 था दिन की शुरुआत। नहीं, एवरेज कंट्री का। अभी तो हम जनवरी में बैठे हैं, जो वर्स्ट मंथ्स हैं वो है हमारा एवरेज 50, विच इज 10 टाइम्स। तो बाकी महीने भी सेफ नहीं है। तो बच्चों को आप क्या घर में हमेशा थोड़ी बैठा के रख पाएंगे? बच्चों को खाली पोल्यूशन से बचना इज नॉट द ओनली लाइफ दैट दे हैव। They have to play, they have to sing, they have to interact with the society, they have to learn so many things. So हम उसको नॉर्मलाइज नहीं करें। हम जो इम्पैक्ट जो थोड़े बहुत इंडिविजुअल लेवल पे जो कंट्रोल हम कर सकते हैं हम करें। बाकी हम डिमांड करें हमारी सोसाइटी से, हमारी गवर्नमेंट से, हमारी रिप्रेजेंटेटिव से कि क्या सोल्यूशन जो है हम मांग रहे हैं, क्या सोल्यूशन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिकॉज पोल्यूशन की जो समस्या है वो एक दिन में ठीक नहीं होने वाली।